हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद शिखा। सो इस सीरीज़ में हम मंथली मैगजीन की साइंस एंड टेक पोर्शन कवर करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आई विल ट्राई टू रीड अलोंग एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में अवॉइड करूँगा। एंड जैसे ही कोई टेक्निकल वर्ड आता है मैं ट्राई करूँगा उसको एक्सप्लेन करने का एंड एक ओवरव्यू देने का, ताकि बेटर आप अंडरस्टैंड कर पाए। या सो लेट्स स्टार्ट। 7.1 Nobel Prize in Physics 2023. So the prize was awarded for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. So पहले देखते हैं attosecond क्या है and electron क्या है. So attosecond कुछ नहीं है, एक another unit of time है. So जैसे second है उससे छोटी यूनिट मिली सेकेंड है 10⁻³ माइक्रो सेकेंड है, उससे छोटी नैनो सेकेंड है, पिको सेकेंड है, फेम्टो सेकेंड है एंड फिर एटो सेकेंड है लास्ट में. सो ये भी हमको आई गेस याद करने की ज़रूरत है कि मिली सेकेंड इज 10⁻³ माइक्रो सेकेंड -6, नैनो सेकेंड इज 10⁻⁹, पिको सेकेंड इज 10⁻12, फेम्टो सेकेंड इज 10⁻15, एटो सेकेंड एस इज 10⁻18. Okay, then also let's briefly look an overview of what was an atom. So atom was basically the smallest particle of a chemical element that can exist. Here you should note that atom is the smallest particle of a chemical element and not a physical element. So atom can be further divided into nucleus and electron. Nucleus can be further divided into protons and neutrons. They can also be further divided and are basically made up of quarks. Whereas electron is a fundamental particle. It cannot be divided and is not made up of anything else. So here's an example of helium atom. So here electron is the negatively charged particle which basically revolves around the nucleus, and nucleus is made up of two things: proton, which is the positively charged particle, and neutron, which is the neutral. Okay, so this was the brief intro for atom and attosecond. Okay, so now we know attosecond and electron. So these were the awardees about the electron dynamics. So electron dynamics in simple terms refers to the behavior and movement of electrons within the atoms and molecules. Self-explanatory. An atom is composed of a nucleus of protons and neutrons, and electrons which are negatively charged travel around this nucleus. तो हमने देखा electrons for the negatively charged particle which travel around the nucleus. The nucleus contains protons and neutrons. So atoms, natural time scale is incredibly short. Atoms can move and turn in millionths of a billionth of a second, known as femtosecond. So basically million क्या होता है 10⁻⁶. तो millionth क्या होगा 10⁻⁻⁶. Similarly billionth क्या होगा 10⁻⁹. So millionth of का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ में, ऑफ अ बिलियंथ बेसिकली क्या होगा 10⁻⁻15, विच इज़ ऑल्सो फेम्टोसेकेंड. सो वही है यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड नोन एज फेम्टोसेकेंड. Electrons move or change rapidly in the magnitude of attosecond, which makes them difficult to study. For a long time, femtosecond was seen as the shortest achievable duration of light pulses, thus making the study of electrons very difficult. So, how did the discovery overcome this challenge? What challenge? The challenge of studying electrons in the process. So, generation of attosecond pulses of light. In 1987, Anne and her colleagues transmitted an infrared laser beam through a noble gas. Noble gas was the unreactive gas, and it produces multiple overtones. So यहाँ पे 2-3 new words हमारे पास आए हैं. So the first is infrared. So infrared कुछ नहीं था. infrared light इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट स्पेक्ट्रम का एक पार्ट था. जब हम उसको डिवाइड करते थे डिफरेंट पार्ट्स में, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, तो उसी का ही एक पार्ट है. लेज़र क्या फुल फॉर्म दे सकते हैं? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. सो coming back to it, infrared laser beam through a noble gas and produce multiple overtones. तो उन्होंने क्या किया, लेज़र बीम को, इंफ्रारेड लेज़र बीम को एक नोबल गैस के अंदर जब के ऊपर थ्रो किया तो उसने मल्टीपल ओवरटोन्स किया. तो अब ओवरटोन्स क्या है वो देखते हैं. सो ओवरटोन से पहले देखते हैं कि वेव क्या है. सो वेव को अगर रिमाइंड कराऊँ मैं,
सो वेव इस तरह से दिखती थी। सो ये उसका एम्पलीट्यूड होता था, टाइम पीरियड होता था, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और ये द हाईएस्ट पीक को क्रेस्ट कहते थे, और अपोजिट साइड में ट्रॉफ कहते थे। वेव लेंथ होता था द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉफ। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी क्या कहेंगे, वेव लेंथ कहेंगे। तो अभी देखते हैं ओवरटोन्स क्या था। तो ओवरटोन्स कुछ नहीं है, बेसिकली जब हम जैसे गिटार के स्ट्रिंग को स्ट्रक करते हैं तो एक हमको साउंड सुनाई देती है, राइट। साउंड भी क्या होती है, वेव। तो जो मेन हमारी वेव बनती है उसी के टाइम पे दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट और भी बहुत सारी हायर फ्रिक्वेंसी की वेव जनरेट होती है, जिनको हम ओवरटोन कहते हैं। तो इसको कहेंगे ओवरटोन 1, ओवरटोन 2, ओवरटोन 3 एंड सिमिलरली। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ थी ये इसके हाफ है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो ओवरटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है इससे। जितने टाइम ये एक बार बन रही है उतने टाइम पे 2 बार बन रही है। तो 1/2 वेवलेंथ है, ये 1/3 वेवलेंथ है, 1/4 वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इंटरचेंजेबल है और इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो अभी इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। attosecond and attosecond signs. An attosecond is equivalent to 10⁻⁻18 of a second. Okay. Attosecond signs deals with the production of extremely short light pulses and using them to study super fast processes. Okay. Overtones. Overtones are the waves of light whose wavelength is an integer fraction of the beam. So beam हमने बोला है मेन हमारी टोन को। तो इस टोन की जो टोन्स हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो इंटीजर फ्रैक्शन होती है मेन टोन की। तो इनकी वेवलेंथ क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा। एक ये ओवरटोन 1/3, ओवरटोन 2/4, ओवरटोन 3। फॉर एग्जाम्पल इफ द बीम या फिर मेन हमारी जो टोन थी ये वाली टोन हैड अ वेवलेंथ ऑफ 100, then the overtones would have wavelength of 10, 25 and 50 etc. Overtones have several cycles for each cycle in the fundamental tone. Each cycle of a fundamental यानी कि एक साइकिल में फंडामेंटल टोन की जो ओवरटोन है उसकी बहुत सारी यानी कि सेवरल साइकिल्स होती है जो हम देख पा रहे हैं। सो ओवरटोन 3 और टोन को कंपेयर करेंगे तो जितने में ओवरटोन मेन टोन की 1 साइकिल हुई उतने में इसकी 4 हाफ साइकिल होगी। बेसिकली हाफ साइकिल है साइकिल, राइट। तो ओवरटोन्स वर्क द सेम वे इन लाइट वेव्स आल्सो। अभी हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आगे देखते हैं। तो ये क्या हुआ कि जब इंफ्रारेड लेजर बीम उन्होंने नोबल गैस के ऊपर थ्रो करी तो उसने मल्टीपल ओवरटोन्स प्रोड्यूस करी है, उन्होंने ऑब्जर्व किया। सो व्हेन द पीक ऑफ वन ओवरटोन मर्जेस विद द पीक ऑफ अनदर, पीक यहाँ पे क्रेस्ट को कहा गया है। Peak of one overtone merges with the peak of another, they undergo constructive interference and produce a larger peak. वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर एक वेव और ये दूसरी वेव, if the peak of one wave coincides with the peak of another wave, ये टाइम में सेकेंड बढ़ रहा है आगे टाइम, तो अगर ये एकदम सीध में है, एकदम स्ट्रेट उसमें है, तो ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो पीक होगा वो इन दोनों का सम हो, यानी कि बढ़ के आएगा। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे भी यही कहा है कि व्हेन द पीक ऑफ वन ओवरटोन मर्जेस विद द पीक ऑफ अनदर दे अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड प्रोड्यूस अ लार्जर पीक, यानी कि उनका एम्पलीट्यूड या फिर पीक जो है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली व्हेन पीक ऑफ वन ओवरटोन मर्जेस विद द ट्रफ ऑफ अनदर देन हाउएवर दे अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैंसलिंग देमसेल्व्स आउट। तो जब इसका पीक जो है इसके ट्रफ से कोइंसाइड करेगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये दोनों आपस को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 0। तो इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेम लाइन में होता है। तो जो क्रेस्ट ऑफ वन वेव होगा वो ही क्रेस्ट ऑफ सेकेंड वेव के अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे या साथ में मिलाएंगे या मर्ज करेंगे तो ये क्या होगा, सेम पोजीशन पे आएगा। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, इनका प्लस हो जाएगा और रिजल्टेंट इनका ज़्यादा हो जाएगा। ये एक आप डायग्राम से भी देख सकते हैं।
जब हम दो स्पीकर जब सेम साथ में रखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमको ज़्यादा जो वॉल्यूम बढ़ के सुनाई देती है, राइट। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ही होता है। ओके, so by combining a large number of overtones in this way, physicists fine tune a setup to produce light pulses for a few hundred attosecond. तो उनने इस फिनोमेना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिनोमेना को यूज़ करके बहुत सारे ओवरटोन्स को प्रोड्यूस किया और एक सेटअप बनाया जिसमें जो रिजल्टेंट होता है, जो सबको मर्ज करके प्लस माइनस करके जो लास्ट में रिजल्टेंट वेव बनेगी वो एक एटोसेकेंड वाली बन जाए। सो तो ये वो एक्सपेरिमेंट था कि ये बहुत सारी ओवरटोन्स बनाई उन्होंने, बहुत सारी वेव, जब इनको सुपर इम्पोज यानी कि एक के ऊपर एक यानी कि मर्ज कर दिया तो ये इस तरह से दिखा। और इसमें काफ़ी क्रेस्ट एक के ऊपर एक आए, काफ़ी अपोजिट आए, तो कुछ कैंसिल आउट हो गए, कुछ कैंसिल आउट हो गए, कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जिसमें प्लस हो जाता था। तो यहाँ पे कुछ रीएनफोर्स हुए यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कुछ कैंसिल आउट किए यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो रिजल्टेंट हुआ वो क्या हुआ कि कहीं पे तो माइनस होकर नलीफाई हो गया तो ज़ीरो हो गया, और कहीं पे बढ़ गया तो ऐसे एक पल्स बन गया। पहले कुछ नहीं, फिर एक पल्स, फिर कुछ नहीं, फिर एक पल्स, फिर एक कुछ नहीं। तो वो ये यहाँ पे बताएंगे कि प्रोडक्शन ऑफ पल्स ट्रेन, इसको उन्होंने बोला पल्स ट्रेन। तो ये कैसे बनाया? सो इन 2001 पेरी एंड फ्रेक were able to produce verified attosecond pulses in a train. A pulse followed by a gap, followed by a pulse, and so forth. A pulse followed by a gap, followed by a pulse, and so forth. By 2017, experts were able to produce a pulse as short as 43 attoseconds. Okay. Resultantly, these experiments produce pulses of light that were measured in attoseconds. Okay. These pulses can be used to provide images of the processes inside atoms and molecules, including electron dynamics. तो फाइनली अब हम एटोसेकेंड पल्सेस को यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या चल रहा है। एप्लीकेशन क्या हुआ एटोसेकेंड फिजिक्स की? मेडिकल डायग्नोसिस टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, फॉर इंस्टेंस स्टडी ऑफ मोलिकुलर लेवल चेंजेस इन ब्लड टू आइडेंटिफाई डिसीज। तो ये हमारे ब्लड सेल के अंदर जो मोलिकुलर लेवल चेंजेस हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको स्टडी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एटोसेकेंड फिजिक्स, एंड उसको हम डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड होगा डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टू डेवलप फास्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड बेटर टेलीकम्युनिकेशंस, इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एक्सप्लोर शॉर्ट लिव्ड atomic and molecular processes in fields like material science, electronics, and catalysis. This was all about Nobel Prize in Physics 7.1. If you have doubt or have any suggestion about the way I teach, you can comment down. And let's meet you in the next.